Yes, for any statistical study, we need to actually collect the data, and this data is collected from two sources. Basically, it is classified into two, that is primary source or secondary source of data collection. Primary source is the source of origin of that particular data. So whenever we are collecting the data from the source of origin, we can say it is the primary source of data, and the other type is the secondary source of data collection. In that, we can say the secondary source of collection of data implies obtaining the relevant statistical information from any agency and not the primary source or not the source of origin. So in case whenever you are collecting the data regarding some population etc., and you are not going door to door to collect that data, and you may collect this particular data which is required on population, say from a government agency. So in that case you can say you have collected the secondary data. Okay, एग्जाम्पल वही है कि आपको अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड कोई डाटा कलेक्ट करना है और वो डाटा आप घर घर जाके नहीं कलेक्ट कर रहे हो, देन इन दैट केस यू मे गो टू सम गवर्नमेंट एजेंसी. आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी से भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हो. तो इस केस में जब आप घर घर जाके डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, इन दैट केस द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सम गवर्नमेंट एजेंसी, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. सो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में क्या था, आप घर घर जाके डाटा कलेक्ट कर रहे थे, सो दैट वाज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यू कलेक्टेड. बट सेकेंडरी सोर्स में क्या है, आप घर घर नहीं जा रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी में किसी और जगह पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहाँ पे ये डाटा अवेलेबल है रेडीली, पहले से किसी ने कलेक्ट करके रखा है. तो जो पहले से डाटा किसी ने कलेक्ट करके रखा है, आप वहां से जब ले रहे हो ये डाटा, तब आप कह सकते हो कि यस वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सेकेंडरी डाटा. तो ये प्राइमरी सोर्स क्या होता है, फर्स्ट हैंड डाटा है, बट सेकेंडरी सोर्स इज सेकेंड हैंड डाटा यू कैन से. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड the principal differences between these two types of data. First is the difference in originality. The primary data are original because they are taken from the source of origin, but secondary data are already in existence, so they are not original. Then second is difference in the objective. The primary data are always related to specific objective, you can say, of the investigator, and therefore they do not need any adjustment to be done in the data or concerned study. But on the other hand, the secondary data have been collected earlier with some other objective, and at present the objective of the investigator may be different than the objective of the data already collected by some other agency, and hence maybe in the present investigation the investigator may be required to do some adjustment in the data. मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले से जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा कलेक्ट करके रखा है, तो उसमें हो सकता है कि प्रेजेंट जो इन्वेस्टिगेटर स्टडी कर रहा है उसको हो सकता है कि कोई एडजस्टमेंट करना पड़े, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन डाटा हो सकता है डिफरेंट है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से डाटा कलेक्ट करके रखा है हो सकता है उस समय उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और रहा होगा. सो येस, टू मैच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटर in the present times, the investigator may be required to make certain adjustment to the data already collected by the organization at earlier points of time. So yes, प्राइमरी डाटा को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेटर ने अपने हिसाब से उसको कलेक्ट कर लिया है. बट सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने की जब जरूरत महसूस होती है तब पहले आपको उसको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. Primary data are costlier in terms of time, money and efforts involved than the secondary data. Primary data में क्या है कि खुद इन्वेस्टिगेटर को घर घर जाके डाटा कलेक्ट करना है, तो हो सकता है कि अगर एरिया बड़ा है तो उसको स्कूटर या कुछ लेके जाना पड़ेगा, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस होंगे, सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी. बट एफर्ट्स भी होगा, बहुत सारे घर होंगे उस एरिया में, तो हर घर जाना पड़ेगा, तो खुद अकेला इन्वेस्टिगेटर है तो उसको ये मेहनत खुद अकेले को करनी है. एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो, कितने सारे घर है तो सबके घर जाने में इतना सारा टाइम तो लगने वाला है. सो येस, प्राइमरी डाटा कलेक्शन इज कॉस्टलियर दैन सेकेंडरी डाटा कलेक्शन. देन नेक्स्ट यू कैन से that how basic data is collected, some statistical methods and modes of collection. The basic methods of collecting the primary as well as secondary data you can say are personal interviews,
or information through questionnaires and schedules, and third is the telephonic interview. But there is also sub classification in that. So under the heading personal interviews, the sub classification is, first one is direct personal investigation, the second is indirect oral investigation, and the third is information from local sources or correspondents. So let us first understand the very first sub classification under personal interviews. So that is direct personal investigation. In this method, the investigator will go door to door and meet every person. So there is some direct connection or direct personal interrogation of each person, and this is done by the investigator. So yes, the direct personal investigation is the method by which the data are personally collected by the investigator from the respondents. तो रिस्पॉन्डेंट्स को खुद ये इन्वेस्टिगेटर मिलेगा और उनसे डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा जैसी भी उसकी ज़रूरत है. The success of this method, however, requires that the investigator must be very diligent, efficient, impartial and tolerant. हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेटर है जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको पहले तो वो इम्पार्शियल होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए कि चलो उसको लगता है कि नहीं ये यहाँ पे ये जो घर है यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मुझे अच्छा खाने पीने को ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा तो उसमें पहले चला जाता हूँ, या ऐसा कुछ, या ये मेरे पहचान वाले हैं तो मैं उनसे डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ. तो इस तरह की कोई भी बायस या पार्शियलिटी उसको अपने मन में नहीं रखनी है. या अगर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के ही घर जाऊँगा तो इस तरह की कोई फेवरेटिज्म या पार्शियलिटी मन में नहीं रखनी है, तो ही ये मेथड पर्टिकुलरली सूटेबल होगी डाटा कलेक्शन की, अदरवाइज नहीं. फिर वो एफिशिएंट भी होना चाहिए. जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको अपना काम करने का एक तरीका अच्छे से आना चाहिए. अगर वो ट्रेंड नहीं है, अगर उसको पता ही नहीं है कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, तब तो ये मेथड उसके लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं होगी. सो यस, फिर हम समझते हैं कि सूटेबिलिटी क्या है. व्हेन दिस पर्टिकुलर मेथड डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन इज सूटेबल. So this is suitable particularly when the field of investigation is limited and not very large. तो जब भी आपका field of investigation छोटा होगा, limited होगा, बड़ा नहीं होगा, उस केस में ही ये मेथड particularly suitable होगी क्योंकि घर घर जाके इन्वेस्टिगेटर को डाटा कलेक्ट कर लेना है. Then next, degree of originality of the data is required. तो जहाँ पे भी आपको डाटा accurate चाहिए या original चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि we should prefer this method. That is going door to door and collecting the first hand information from direct personal investigation. In third case, information is to be kept secret. तो अगर आपको लगता है कि नहीं जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसको सीक्रेट रखना ज़रूरी है, उसकी सीक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट, इन दैट केस येस पर्सनली आपको जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पर्सनली जाके ही डाटा कलेक्ट कर लेना चाहिए, 1-to-1 आपको मिलना चाहिए सबको. देन एक्यूरेसी. Whenever the accuracy of the data is that significant, when accuracy is that vital to the investigation made at hand, so in that case, yes, this method is preferred and it is very suitable. क्योंकि आप जो भी respondent बोल रहा है आप directly अपने कानों से सुन रहे हो. So yes, there is no third person interfering in this particular communication. So you can say it is accurate also. Then when direct contact with the respondents is required, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि जहाँ पे आपको किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट करना यही एक कंपल्शन है, या डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. तो ऐसी कोई जब ज़रूरत होगी तो यही मेथड सुटेबल होगी. Then let us understand the merits of this particular method. The first is originality. Yes, this method has the degree of originality because the information which we collect over here is फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. देन सेकेंड, इट इज़ एक्यूरेट, कि फेयरली एक्यूरेट तो ज़रूर है ये डाटा क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, खुद इन्वेस्टिगेटर ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलेक्ट किया हुआ है. देन थर्ड, रिलायबल या रिलायबिलिटी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर डाटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, रिलायबिलिटी इज नॉट एट ऑल अ डाउट. सो रिलायबिलिटी विल बी 100% देयर बिकॉज एक्यूरेसी होगी, सीक्रेसी भी मेंटेन हो रही है, ओरिजिनल डाटा भी है. सो येस, दिस पर्टिकुलर डाटा विल बी रिलायबल, ये डाटा भरोसे लायक होगा. देन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पॉन्डेंट्स द इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन द अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल. दिस पर्टिकुलर मेथड गिव्स द एडवांटेज दैट आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बस वो ही नहीं मिल रही है, बट उसके साथ जब आप रिस्पॉन्डेंट को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वो आपके
आपको दे देता है या पास कर देता है इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. So yes, not just the information which is required, but the other related information is also passed on by the respondent to the investigator. So this is one of the additional you can say merit, क्योंकि कभी कभी additional information भी जरूरी होता है to clarify our conclusions. Then uniformity. So when the fair degree of uniformity is necessary, and in that case the investigator himself collects this data from the respondents, you can say कि yes हम लोग comparison भी कर सकते हैं. एक तो यहाँ पे investigator खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है respondent से और हर एक respondent को वो खुद मिल रहा है, तब उसको पता चलेगा कि ओके जो भी डाटा वो कलेक्ट कर रहा है क्या वो कंपेरेबल है, क्या उसने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं अलग अलग लोगों से क्या उसको वो उसमें कोई कॉमन स्ट्रिंग तो नहीं है, कॉमन कुछ है उसमें डाटा या कुछ इन्फॉर्मेशन कॉमन निकल रही है कि नहीं. अगर है तो यस कंपैरिजन इज पॉसिबल. ये कंक्लूजन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें भी कुछ अलग से निकल के आएगा कंक्लूजन बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज पास्ड ऑन बाय द रिस्पॉन्डेंट्स टू द इन्वेस्टिगेटर. Then elasticity. This method is fairly elastic because the investigator can always make the necessary adjustments in the set of questions as per the person or situation. जैसे अगर इन्वेस्टिगेटर को लग रहा है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो इन्वेस्टिगेटर की लैंग्वेज कोई और हो सकती है और रिस्पोंडेंट की लैंग्वेज कोई और हो सकती है. तो उस केस में जब लैंग्वेज डिफरेंस है या जो क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर ने पूछा है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और उसको समझ में नहीं आ रहा है रिस्पोंडेंट को, तो इन दैट केस इन्वेस्टिगेटर अगर ये समझ पाता है कि ये डिफिकल्ट लग रहा है उसको क्वेश्चन, तो अपने हिसाब से वो कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है क्वेश्चन में एज पर द नीड ऑफ द पर्सन और एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन. सो यस, इलास्टिसिटी इज देयर इन दिस पर्टिकुलर मेथड एंड दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ दिस मेथड यू कैन से. Now let us understand the demerits of this method. This method, that is direct personal investigation method, it is difficult to cover the wide areas. Yes, because the investigator is required to go door to door, house to house. This is just an example, going door to door, house to house. But yes, in this case, more time will be required to cover the wider area, and hence this method is not suitable for wide area coverage. तो जहाँ पे भी जिस डाटा कलेक्शन में अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है तो तब ये मेथड सुटेबल नहीं होगी. देन पर्सनल बायस. नाउ दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. यहाँ पे क्या हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर का कोई पर्सनल बायस, एप्रीहेंशन ऐसा कुछ हो सकता है. एप्रीहेंशन या बायस मतलब कोई इन्वेस्टिगेटर की खुद की कोई धारणा, मान्यता हो सकती है कि उस हिसाब से वो सोच रहा है या ऐसे लग रहा है उसको कि ऐसे ही वो रिस्पोंडेंट जवाब देगा. तो अगर पहले से उसके मन में कुछ ऐसा है तो yes, if this personal bias is there in the mind of investigator, maybe the results drawn or conclusions drawn at the end of the study or at the end of the data collection, the results may be, you can say, impaired, or the results may not be true. And third, this method is very expensive in terms of time, money and efforts. हाँ, इसमें इन्वेस्टिगेटर को घर घर जाना पड़ेगा, उसके पेट्रोल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि हर घर को कवर करना है उसको, एंड एफर्ट्स, थका देने वाला भी एक काम है. तो यस, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स के तौर पे कहेंगे तो ये मेथड बहुत कॉस्टली है. देन लास्ट डिमेरिट इज लिमिटेड कवरेज. द एरिया कवर्ड अंडर दिस मेथड इज टू लिमिटेड, यू कैन से इट इज वेरी लिमिटेड. तो अगर वाइड एरिया आपकी अगर ज़रूरत है कि यू नीड टू कवर वाइड एरिया, देन दिस मेथड इज नॉट एट ऑल सुटेबल. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. Now, indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed. Now, investigator directly respondent को नहीं मिल रहा है क्योंकि the method name itself suggests indirect oral investigation. मतलब यहाँ पे oral investigation जरूर होगा but not directly from the respondent. तो indirectly कहाँ से होगा? तो take an example. See, अगर employees के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टिगेटर को, तो हो सकता है डायरेक्ट मेथड अगर वो फॉलो कर रहा है तो हर एक एम्प्लॉय को जाके मिल सकता है इफ ही इज फॉलोइंग द फर्स्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. बट यहाँ पे मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो उसको हर एक एम्प्लॉय को मिलना पॉसिबल नहीं होगा, रादर इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस मेथड एट ऑल. सो
whenever this investigator wants to collect the information about the employees, now if he is following indirect oral investigation method, in that case he has to approach the company heads or the employer and not the employees directly. तो एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आपको इस केस में, इस मेथड में आपको अप्रोच करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर हो सकता है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है जहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आप एचओडी से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो या एम्प्लॉयर से इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज, दे आर नॉट मीटिंग द एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इन दिस, बट दे आर मीटिंग देयर बॉस to collect the information regarding them or employees. Then when this method is suitable. Now this method suits when the field of investigation is relatively large. तो अगर आपको समझो कि 5000 एम्प्लॉयज़ है और आपको इन सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट करना है, तो हर एक एम्प्लॉय को वो कांटेक्ट कर करके आप ये डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब टाइम लगेगा, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा एफर्ट भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। सो येस, whenever the field of investigation is large, the method that is indirect oral investigation, this method is suitable. आपको ये मेथड लेनी है जब भी एरिया लार्ज होगा, तब इनडायरेक्टली आपको डाटा कलेक्ट कर लेना है। घर घर जाके या एम्प्लॉय से, हर एक एम्प्लॉय से मिलना नहीं है, आपको डायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास जाना है या आपको डायरेक्टली किसी एचओडी के पास जाना है जहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे। सो जब एरिया लार्ज होता है तब आपको ये मेथड सूटेबल रहेगी। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जब भी ऐसा कोई डाटा है जो आप डायरेक्टली लोगों से मिलके कलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो यस, whenever it is sometimes it may happen that कोई डाटा ऐसा होता है कि वो डाटा आप डायरेक्टली लोगों से मिलके कलेक्ट नहीं कर पाते हो। इन दैट केस यस, वी कैन से कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड को आपको इसी मेथड से डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि हर एक इंसान से जाके, हर एक एम्प्लॉय या हर एक हाउस होल्ड में जाके डाटा कलेक्ट नहीं करना है। रादर गो टू फ्यू पीपल ओनली, अप्रोच फ्यू पीपल और जस्ट द बॉस एंड गेट द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड। तो मतलब जहाँ पे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। The concerned respondents are not capable of giving information because of their ignorance or illiteracy. तो जब भी रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो इलिटरेट होंगे या इग्नोरेंट होंगे। इलिटरेट मतलब या तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे जो भी आप क्वेश्चन उनको पूछ रहे हो, और इग्नोरेंट तो ये भी हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी उनके पास है ही नहीं, या उन्होंने कभी सुना नहीं है, तो या फिर उनको कभी उस पर्टिकुलर टाइप की जानकारी देने का कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है। सो इन दैट केस व्हेनेवर द रिस्पॉन्डेंट्स आर नॉट कैपेबल, रिस्पॉन्डेंट्स की कैपेबिलिटी ही नहीं है आपका वो क्वेश्चन समझ के आपको जवाब देने की, तो ऐसे में आप उसको डायरेक्टली मिलके क्या करोगे, हो ही नहीं सकता। तो नेचुरली यू विल हैव टू ऑप्ट फॉर द मेथड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इन दैट केस। Then investigation is so complex in the nature that only experts can give the information. जब आपको जो डाटा चाहिए वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है, so in that case you should actually prefer the method that is indirect oral investigation. क्योंकि जब एक्सपर्ट्स ही वो डाटा दे सकते हैं तो सामान्य इंसान या कॉमन मैन या कॉमन एम्प्लॉयज वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो जो एक्सपर्ट लोग ही दे सकते हैं तो उन्हीं को डायरेक्टली आपको मिलना चाहिए। Regarding now again the information collected is regarding the employees only, but you are going to approach the expert or say human resource department in the organization or the boss or the employer of those employees, क्योंकि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है, जो एम्प्लॉयज को कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे जवाब देना है। सो यस, दिस मेथड is mostly used by government और नॉन गवर्नमेंट कमिटीज और कमीशंस। तो ये इंडिविजुअल इंसान ये मेथड को ऑप्ट ज़्यादातर नहीं ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबली नहीं है घर घर जाके सब कुछ करना। सो डायरेक्टली आपको अप्रोच करना होगा किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और वो भी अप्रोच कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही, या इवन नॉन गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर सकते हैं whenever the information required is from that particular organization. Then we can talk about the merits now. So merits में क्या आएगा, the notable merits of this method are wide coverage. So yes,
अगर आपको डाटा ऐसा कलेक्ट करना है जिसमें वाइड कवरेज की ज़रूरत है तो ये मेथड बहुत ही सूटेबल है. So wide coverage is one of the merit of this particular method, that is indirect oral investigation. Then this is less expensive. Now less expensive as compared to the first method. इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगा ही, एफर्ट भी इन्वॉल्व है ही, बट एज कंपेयर टू द फर्स्ट मेथड दिस इज लेस एक्सपेंसिव और लेस कॉस्टली. देन एक्सपर्ट ओपिनियन. Using this method, investigator can seek the opinion of experts and thereby can make his information more reliable. अगर ये डाटा वो खुद एम्प्लॉय से कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, तो हो सकता है उसको जो डाटा मिले वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री ना हो. बट इफ एट ऑल ही इज फॉर द सेम डाटा, इफ एट ऑल ही इज अप्रोचिंग द एम्प्लॉयर और द एचओडी और एचआरडी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, तो एम्प्लॉयज के बारे में अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो डायरेक्टली हेड को या एम्प्लॉयर को आप अप्रोच करते हो, तो इन दैट केस दोज HOD or those HRD department heads etc. being the experts, they can focus more properly on this particular data rather than it would have been possible in case the investigator had approached the employees. तो yes, experts से आप जानकारी ले रहे हो इस मेथड में, तो इसका मतलब है ये डाटा आपके लिए रिलायबल भी होगा. देन फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा एम्प्लॉयर को इन आवर एग्जांपल. सो यस, खुद इन्वेस्टिगेटर का कोई बायस इसमें काम में नहीं आएगा. खुद इन्वेस्टिगेटर कोई टाइप का बायस इसमें ला ही नहीं सकता है. देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन दिस मेथड बिकॉज इज गोइंग टू डायरेक्टली गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन आवर एग्जाम्पल. Simple, this method is very simple. It is very simple approach of data collection and simplicity is the merit in this case. Now let us understand some demerits of this method. It is less accurate. Yes, you can say the data collected in this method may be less accurate because the information is obtained from the persons other than the concerned respondents. कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं ना कि खुद के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसी से जाके मिलना चाहिए, उसी से पूछना चाहिए, तो उससे ज़्यादा कोई और उसके बारे में नहीं बता सकता. सो दिस पर्टिकुलर थॉट इज अप्लाइड ओवर हियर while saying that the information obtained from other persons regarding the respondents may be less accurate because the persons who have given the information may not have the exact information which is required by the investigator regarding the respondent. Then biased, ऊपर देखा हमने मेरिट में था फ्री फ्रॉम बायस, बट यहाँ पे डीमेरिट में भी लिखा है कि बायस्ड हो सकता है इन्वेस्टिगेटर. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द विटनेसेस गिविंग द इंफॉर्मेशन. ऊपर जो बायस फ्री फ्रॉम बायस था वो फ्री फ्रॉम बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर था मेरिट में, बट यहाँ पे किसके बायस की बात की जा रही है, यहाँ पे there is a possibility of personal bias of the witnesses of the person who are giving the information. जैसे अगर take an example, if at all there has been some mishap on the रोड पे कुछ एक्सीडेंट जैसा कुछ हो गया है, तो वहाँ पे जिन लोगों ने ये विटनेस किया है एक्सीडेंट को या देखा है वो एक्सीडेंट को, तो वो अपने हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे अगर किसी ने उनसे पूछा तो, है ना. जब रोड पे कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट भी आ जाए वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. तो जर्नलिस्ट तो जनरली अलग अलग लोगों से वहाँ पे जो मौजूद है, उन्होंने जो आंखों देखा हाल देखा होगा, तो उनसे वो पूछते हैं. बट जो भी बता रहे हैं जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटर जिससे भी पूछ रहा है, तो वो विटनेस जो होगा वो अपने हिसाब से उसको देखेगा और डिस्क्राइब करेगा. ये वही बात हुई जो एलिफेंट को, अगर सब लोग एलिफेंट वाला एग्जाम्पल हमने बचपन में जो स्टोरी सुनी है एलिफेंट के बारे में, कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है और वो एलिफेंट को जाके छूते हैं, तो अलग अलग एलिफेंट के ऑर्गन्स को छू के बताते हैं कि जैसे उसकी पूंछ है तो रस्सी की तरह है, उसके कान है कि सुपड़े की तरह है, या इस तरह कुछ. तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर घटना को देख रहे और उसी हिसाब से वो डिस्क्राइब करते जा रहे. सो येस, देयर मे बी बायस फ्रॉम द साइड ऑफ witnesses who are giving the information to the investigator in this case. तो ये एक इस तरह का बायस का हो सकता है प्रॉब्लम इस मेथड में.
Then doubtful conclusion. Now this method may lead to doubtful conclusion due to carelessness of the witness. जैसे अभी मैंने कहा कि विटनेस जो भी है, जो घटना का आपको देखा हाल आपको बता रहा है, तो अगर उससे कोई गलती से एक आध पॉइंट छूट गया आपको बताने में, तो जो आपका रिपोर्ट बनेगा, तो जो आपका कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे, रिजल्ट होगा, तो वो तो अलग ही होगा। अगर कोई गलती से भी वो विटनेस की बात उसके जस्ट दिमाग से निकल गई बोलते बोलते, फिर आपका जो कंक्लूजन है, फिर आपका जो रिपोर्ट है वो मुश्किलों से भरा होगा, क्योंकि yes that will not be true. Okay, so this is one of the demerit of the method. Then let us understand the difference between them, the two methods. We have already studied them. In case of personal direct investigation, the investigator establishes direct contact with the respondent, but direct contact is not established in case of indirect oral investigation. Then second thing, the direct personal investigation method may be, in that it is generally possible when the field is very small, but indirect oral investigation वाली method तब यूज होती है जब field या area of coverage is wide and large. Then direct personal investigation में investigator must be well versed with the language of the respondent, but there is no such requirement in indirect oral investigation. तो first method में investigator को respondent की language आना जरूरी है, बट सेकेंड मेथड में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रिस्पोंडेंट की लैंग्वेज से वाकिफ हो, बिकॉज ही इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट द एम्प्लॉयर इन आवर एग्जाम्पल रादर देन द रिस्पोंडेंट और एम्प्लॉय. Then direct investigation is relatively costlier, but indirect investigation is relatively less costlier, you can say. So this was the difference between the two methods. Thereafter, let us understand the next method.